begin with the journey for NDA. How these cadets prepared themselves and how can you is the main question. What is the difference between the cadets who got success and they could not? There is a slight difference. As we know, there are the total 8 lakh plus cadets who are appearing for this prestigious exam, and out of that only 8,000 qualifying for the next phase. So how they are preparing? For this we are having an expert team with us who is guiding you individually on day-to-day basis. The cadets who followed the same schedule, the cadets who followed the instructions given by their instructors, their names are written in the board today in front of you. The same thing, the same names, you can also get it on this board only with your dedication and smart work. For this smart work, for this dedication, the most important thing I am always telling that train your brain. This is the total concept of your mindset. If you have determined yourself that yes, I am going to qualify this examination, certainly you will qualify the examination. There is no doubt. And why I am saying it today? Because I have observed, especially during 3 to 4 years period, we have seen a cadet Janul Tekar, who was a very average student in his academics, but his dedication was so much focused. He qualified his first attempt while he was in 12th class itself. Means in his first attempt. So your dedication, your hard work always pays. It will revert you back if you are dedicating your time towards your study. Getting the point, Bachcho? This is nothing but a mindset. Now, see the ratio. We are having a batch of only 30 cadets, which we are calling as Super 30. And out of that Super 30, we are having approximately 28 to 29 cadets. If that much result we are getting, then imagine the ratio of national level. As I told you, there are total 8 lakh students are appearing for this examination. And how many are qualifying? Only 8,000. What is the national ratio? Below 1%. Why we are able to give that much selection, that much qualifying cadets? Because of our schedule, because of our limited size batches. So cadets, you are lucky that you are getting personalized attention from each and every faculties, and you can excel in your life if you are focused, and you can get success in your life. Thank you so much. Now I would like to call our other team members who will explain in detail about the cadets, how they have prepared, how they did their things. And for that, the first I would like to call Sumit. Sumit, you can come and explain about the other things. Thank you. राहुल को तो बहुत सारे लोगों ने आई थिंक देखे होंगे, कुछ समय पहले ही वो कर गए। मुझे लगता है जो लोग सिलेक्ट होते हैं और जो लोग नहीं होते हैं, बस छोटा धागे भर का फर्क होता है। 1% वो मेहनत कम करते हैं बाकी लोगों से, सिर्फ 1%। बाकी लोगों के एग्जाम कितने मार्क्स से छूट जाते हैं? 4 मार्क, 8 मार्क, 3 मार्क, 6 मार्क, बस इतने ही एग्जाम से बस आप लोग इतनी सी मेहनत करना भूल जाते हो या रह जाती है, उससे आपका रिजल्ट रह जाता है। उन लोग बाकी लोग से अलग कैसे? डेडिकेशन, हार्ड वर्क। मेरे को मोस्टली लगता है यहाँ हार्ड वर्क के लिए सब लोग रेडी है, सब लोग यही सोच के आते हैं कि मुझे लगना है, मुझे वर्दी चाहिए, तभी वो लोग आप
लोग यहाँ आए थे। पहले दिन ना सबके गोल, सबके विजन बहुत क्लियर होते हैं। धीरे 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 समय बीतता है और आपके जो ड्रीम्स है वो फेड अवे धीरे धीरे जाते जाते हैं। जब आप यहाँ आते हो, सिलेबस देखते हो, सारी चीज़ें देखते हो, मेरा बस यही कहना है, जो लोग लगे हैं उन लोगों ने क्या किया, लगातार निरंतर सिर्फ अपने पर भरोसा रखना है। लगातार बहुत सारे वो लोग ऐसे नहीं थे कि एक्सेप्शनल थे, जब वो लोग नए आए थे, यहाँ आए थे, वो लोग भी बहुत बिलो एवरेज, आधे से ज़्यादा। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा नितिन का, नितिन पुरोहित मध्य प्रदेश से एक बच्चा आया था, इंग्लिश तो उसकी इतनी ज़्यादा वीक थी, इतनी ज़्यादा वीक थी जिसको कोई हद नहीं। बहुत बार तो मैंने देखा है वो यहाँ आके सीधे रो देता था, आता था और बोलता था कि सर नहीं होने वाला, मेरा इंग्लिश इतना वीक है, मुझसे होगा ही नहीं, आगे जाके एसएसबी भी करना है, वहाँ मैं कैसे करूँगा। बट मुझे इतना लगता है उसने सिर्फ एक चीज़ जो नहीं छोड़ी वो है पढ़ना। लगातार लगातार आपका सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ यहाँ है ना तो वो आगे बढ़ना, बस पढ़ते जाओ। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा यार मैं इसके बना ही नहीं हूँ, मुझसे होगा ही नहीं, अरे कैसे नहीं होगा। जो लोग कर रहे हैं, अगर नितिन कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, उसका इंग्लिश इतना वीक था, कभी कभी तो मुझे लगता था कि नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट उसका रह गया था, बट उसके बाद लगातार पिछले 3 अटेम्प्ट्स में उसने बैक टू बैक रिजल्ट्स दिए। आगे भी देता रहेगा, होता रहेगा, बस अपने आप पे विश्वास रखिए, सारी चीज़ रखिए, आगे जाके हो जाएगा। अंडररेटेड यहाँ पर इस साल की एक कैडेट में बात करूँगा, राहुल चौहान। मुझे ऐसा लग रहा था वैसे तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, थोड़ा बहुत बीच का अगर उसका डिस्ट्रैक्शन बोलो किसी भी तरीके का, चाहे वो किसी भी तरीके से आ सकता है, या उसका लैक ऑफ जो भी उसका नसीब रहा होगा, फेल भी कई बार होता है लोगों का कि नहीं हो पाता, कुछ मार्क्स से उसका रह जाता है, कि उसका लास्ट अटेम्प्ट था। बहुत अच्छे से मेहनत किया, सारी चीज़ किया, छोड़ा ही नहीं आखिरी तक। बहुत सारे लोगों को लग रहा था होगा नहीं होगा, लेकिन उसने प्रूव किया इस बार, और इस बार रिजल्ट्स भी दिए। आपके सामने रहा है, बीच में रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है जब आपके बीच से एक लड़का यहीं से उठता है और वो आगे निकल जाता है। तो आपके सामने ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट जिन लोगों को आपने देखा नहीं है वो है जयवल उत्तेकर। ही वॉज सच अ जेंटलमैन, ही इज, ठीक है। उसको अगर आपने देखा होता, मैंने तो इतना देखा हूँ उसमें, और बाकियों में मैं बोलूँगा बाकी सब लोग एक तरफ और जयवल एक तरफ। उसको अगर कोई आप टारगेट दे दिए, उसको होमवर्क दे दिए, रोज आपको होमवर्क दिया जाए, बट करते ना काफ़ी लिमिटेड लोग हैं, 5% 10% लोग वो जाके पीछे होमवर्क करके आएंगे। मुझे लगता है टीचर को ना यहाँ चेहरा देख के आधा चीज़ तो पता चल जाता है ये लोग रिजल्ट देने आए। जयवल ऐसा था कि एक बार अगर उसको आपने कुछ दे दिया है, दिन का रात हो जाए, वो आपको टास्क पूरा करके देगा ही, आपके पास आएगा ही है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आजू बाजू वाले लोग आपके सामने रिजल्ट्स दे रहे हैं, देते हुए आए हैं। राहुल आपके सामने एग्जाम्पल था, जयवल आपके सामने एग्जाम्पल था, नितिन को आपने देखा नहीं है फिलहाल, और भी कुछ लोग हैं। एक सीडीएस का रिजल्ट दिया था संकेत ने, सुपर भी है। आपको कुछ करना नहीं है, बस जितना पढ़ाया जाता है बस डेडिकेटेडली उतना पढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, रिजल्ट आएगा ही आएगा। कुछ लोग हम देख लेते हैं, बाकी आप बस टास्क कंप्लीट करते जाइए, एक एक कदम आपको आपके ड्रीम की तरफ लेके जाएगा। तो बस आगे बढ़ते रहिए, सारी चीज़ करते रहिए। ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच। You know, just tell your journey because you qualified both the examination, AFCAT and CDS. Introduce yourself, then which subjects you are teaching, और simultaneously teach अपना subject निकालना है, ठीक है? And how you have prepared yourself, then how you can help the others, and how you are helping your cadets or friends. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon, sir. Gentlemen, क्या बोला था ना, आज में क्या बनती है? ट्रेन बॉयज इनटू मेन, सुना है? अरे वी ट्रेन बॉयज इनटू मेन, ऐसा नहीं है कि वो मेन के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है, बट एक जनरल कोट है कि वी ट्रेन बॉयज इनटू मेन। ये काम किसका है? डिफेंस का। क्या करते हैं? मैन बॉय को एक मैन में ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है हमारी डिफेंस। ठीक है, ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, सबने सबका बता दिया रिजल्ट वगैरह। बहुत लोग यहाँ पे नहीं थे दिवाली के टाइम पे, एक्चुअली तो सर वगैरह लोग नहीं थे, सब दिवाली की वेकेशंस होती है। सो आई वाज देयर एंड वी वर हैविंग सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स हियर। सो दे वर देयर फॉर 6 years सैनिक स्कूल में, एंड बचपन से ही मतलब 6th क्लास से इफ यू आर स्टडीइंग अबाउट एनडीए, स्टिल दे वर नॉट एबल टू क्लियर देयर एग्जामिनेशन। व्हाई? द रीजन इज कि वी डोंट judge the competitiveness of the exam.
and they were here for 1 month, and I was here, Abhishek sir was also here, and 1 month we given them a crash course about their NDA examination. Basically हमने उनके मैथ्स पे फोकस किया था because their maths was very weak. So मैथ्स पे फोकस किया, and now names are there, you can see कि they have cleared examination. One thing you should know कि English and maths are two subjects which will lead you to clear your examination. And जो GAT वाला syllabus है, current affairs and geography mainly, they will help you increasing your score. If you want to score 400 plus, 450 plus, you can score 450 using maths and English. But if you want to go ahead 450, you have to focus on current affairs and GAT wala section also. Again I will tell you, SBI names are written on the board. They were also students who have cleared their SBI written examination when they were here, and the cadet Suraj Shukla, he was with me for his SST batch also, but unfortunately he was not able to get recommended. He got conference out. Again he has cleared his written examination. He will go for his SSB again. Other than that, I have seen that sir has not mentioned 2-3 names also. Manas Sharma was also with us. He has also cleared his written examination again. He was with us, means not in the academy. I was teaching him on online batch. So Manas Sharma is also there. Other than that, and sir has written the name of Sanket Deshmukh and Vijay Jadhav. Vijay is also my online batch student who is preparing for CDSC, and he has cleared his written examination. Or this time English was very tough for CDS. GAT was also tough, but still he cleared OTA as well as IMA written cutoffs. CDS में different services की different cutoff आती है. So I am happy to announce that OC has given so much of result, and I expect next Super 30 batch and others, those who are willing to join NDA, those who are sitting in the lectures, please focus and you will definitely give your results. And single of you should not be left behind. अगर एक भी छूट गया तो बाद में बहुत दुख होगा कि भाई हमारा क्यों नहीं हो पाया. Now friends ही मोटिवेट करते हैं, और फ्रेंड्स में ही कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फ्रेंड्स में ही हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा देन यू विल नेवर ग्रो. सबसे मेन चीज क्या होती है? फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, और फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बूस्ट. तो इसलिए प्लीज फोकस ऑन योर मैथ्स एंड इंग्लिश, एंड डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस attempt examination and target for ranks. Don't just target for your written examinations. राहुल का इस बार रिटर्न में रिजल्ट स्कोर इज 400 अराउंड. देखा होगा तुम लोगों ने पेपर उसका जब आया था, डिस्कस किया था उसमें तुम्हारे साथ. So his score is around 400. So if he will score good in SSB, he can score all India rank. So SSB is also an important part, but main part is your written examination, because this is in your hand. How much you can gain your marks in written examination. SSB is somewhat unpredictable, but written is something where you can increase your marks as much as you can as it is possible. So I hope कि Rahul get recommended and he will definitely get a rank, and he is also in एयरफोर्स बोर्ड. थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे आई उसको, SSB में मार्क्स वगैरह थोड़े कम मिलते हैं FSB में, बट स्टिल आई होप दैट he will get merited if he get recommend. Other than that, next attempt Super 30 तुम लोगों का नंबर है, और you have to clear your examinations. Okay, thank you so much. बच्चे इसको लाइन का रखते हैं. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. देखो मैं बहुत कंसाइज बात बोलूँगी. बहुत बच्चे जो सर ने बताया 8 लाख की प्रिपरेशन पॉपुलेशन है जो कि प्रिपेयर करती है एनडी, और कुछ 8 लाख में से कुछ बच्चे ओसीए में आज बैठे हैं और वो आगे एनडी के लिए प्रिपेयर करते हैं ना. तो तुम बच्चे और उन बच्चों में क्या फ़र्क है कि तुम ओसीए में आ गए. तो पहली बात तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि अब हम एनडीए नहीं निकालेंगे, अब हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एज है तो हम मार्क्स बाकी बच्चों से ज़्यादा लाएंगे. और ये तुम कैसे करोगे? तुम्हारे पास ओसीए ने एक टीम दे दी है. सर
सामने NDA CDS क्वालिफाइड, सबको दिख गया। सुमित सर जिन्होंने बच्चों ने पढ़ा है अभी तक, तुम्हें पता होगा उनके इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो NDA या CDS में फंसेंगे ही फंसेंगे। सुमित सर के साथ तुम्हारी कौन सी क्लासेस होती है डेली? करेंट अफेयर्स। मैं लिख के दे रही हूँ, मैं जब मेरा पेपर आता था मैं सुमित सर के पास पहुँच जाती थी, सर प्लीज़ मेरे को थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ा दो, क्योंकि तुम्हें पता है, उन्हें पता है कि क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे। मैंने इस बैच को नहीं बताया, मैंने SBI और पिछले वाला जो NDA बैच था उसको इंग्लिश पढ़ाया था, तो मुझे पता है कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस रेपिटेटिव है। क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि जब तुम लोग एक बार OCA के कैंपस में आ गए हो, तुम्हें एक फैकल्टी मिली है, तुम्हें एक टीम मिली है जो कि अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस तुम्हें वो फैकल्टी पास ऑन कर सकती है। और क्योंकि यहाँ पे बच्चों का बैच साइज बहुत कम है, प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ कि तुम लोग इंडिविजुअली जाके टीचर से बात कर रहे हो। यू नेवर नो कि तुम्हें कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा है। मेरे फ्रेंड्स अभी NDA में हैं, सेकेंड टर्म में पहुँच गए इस बार, मेरी उनसे बात होती है, वो बोलते हैं कि वही सपना टाइम अच्छा था जब हमने NDA क्वालिफाई करा था, SSB का वेट कर रहे थे। तुम ये सोच के चलो कि तुम्हारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है जिससे पहले तुम NDA में जाओगे। NDA में पता है ना लाइफ क्या होने वाली है, क्या होने वाली लाइफ? हेल बोलते हैं, ठीक है? तो ये हेल से तुम्हारा क्या चल रहा है, उससे पहले का गोल्डन पीरियड। तो इस गोल्डन पीरियड में इतना अच्छा लाओ कि जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो खुश हो कि भाई मैं 2-2 बजे तक जगने पड़ता था, देखा आज मेरा रिजल्ट आ गया। समझ रहे हो? मेहनत, सिर्फ मेहनत मत करो, मेहनत के साथ खुद पे भरोसा रखो कि मैं पेपर निकालूंगा। तो जब भी तुम रात को क्वेश्चन पेपर कर रहे हो और तुम्हें क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तुम क्या सोचोगे कि मैं इसको तो पेपर के बाद देखूंगा इस क्वेश्चन को, जब मेरा रिजल्ट निकल जाएगा तब इस क्वेश्चन को पता चलेगा कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है? सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होगा, सिर्फ मेहनत से काम नहीं होगा, दोनों चीज़ें चाहिए। क्या क्या? मोटिवेशन और मेहनत। ये कहाँ से आएंगी? बच्चों की तरफ से। और OCA स्टाफ तुम्हें क्या देगा? एक्सपीरियंस। तो तुम्हें सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना है, लेकिन खुद की तरफ से गिव अप नहीं करना है, खुद की तरफ से गिव अप नहीं करना है। सिर्फ कंसिस्टेंट रहो बच्चों, जितना डेली का डेली होमवर्क दिया जाता है सिर्फ उतना करो। रिजल्ट ना निकले तब आना हमारे पास कि मैम रिजल्ट नहीं निकला, आपने बोला था, हमने आपकी बात मानी। ठीक है? आज ईमानदारी से जाके देखना कि हम लोग कितना कंसिस्टेंट रहते हैं। तुम्हें जो डेली का होमवर्क मिलता है, क्या वो तुम सारे करते हो? सारे सब्जेक्ट्स का? जो हाँ बोल रहा है वो ईमानदारी से अगर बोल रहा है तो अगले इंडिया में उसका भी रिजल्ट निकलेगा और तुम्हारा नाम यहाँ लिखा होगा। ठीक है? समझ में आ गया? डन? कोई डाउट नहीं? ठीक है सर, थैंक यू। अभिषेक। जय हिंद मित्रांनो। जय हिंद सर। अर्धे झोपलेले आता पण। जय हिंद मित्रांनो। जय हिंद सर। तुमसे ज़्यादा आवाज़ मेरा निकल रहा है। कितने अप्रॉक्स इधर 40 से 50 बच्चे बैठे हुए, तुमसे ज़्यादा आवाज़ मेरा आगे नहीं पाओगे। जय हिंद टू ऑल। जय हिंद सर। गुड, शाबाश। आवाज़ में जोश होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैम ने 3 चीज़ कहा था, सृष्टि मैम ने। सबसे पहले खुद पे विश्वास, दूसरा बिना मेहनत के काम नहीं होगा, और रही बात आपके अंदर मोटिवेशन की या जोश की, तो यहाँ के जितने भी स्टाफ आप देखोगे आपसे डबल मोटिवेट रहते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो टीचिंग हो, या कोई भी अनदर फील्ड हो। उसके पीछे एक ही कारण है कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ बैठे हैं दे ऑल वेल एक्सपीरियंस अपने अपने फील्ड में। ठीक है? द थिंग कंसिस्टेंसी रखिए। डेफिनेटली हमारे OCA का दूसरा नाम ही डिफेंस फैक्ट्री, और इससे पहले 971 रिजल्ट्स ऑलरेडी थे, और ये रिकॉर्ड जल्द से जल्द 1000 क्लियर होने वाला है। हम उसके इर्द गिर्द ही हैं अभी। तो आप मेहनत करोगे, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे जितने कलीग्स हैं वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। सिर्फ इतना ही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और इतना याद रखिए, अगर OCA में आए हो तो बिना वर्दी लेके नहीं जाना, क्योंकि अगर आप लास्ट तक रुकोगे डेफिनेटली यू गॉट यूनिफॉर्म। राहुल एक सीधा साधा एग्जाम्पल है, उसके साथ उसके कई कलीग्स थे, जिसमें ऑलरेडी सर ने बताया था, अभिषेक देवनाथ, तनीश, बहुत मेहनत किया, नो डाउट। लास्ट तक टिके रहते, डेफिनेटली लेके जाओ। लास्ट तक राहुल ने साथ नहीं छोड़ा, उसको पता था कि आप अब टाइम आ चुका है कि अब मुझे चाहिए हुक बाय हुक, और रुका रहा, डेफिनेटली लेके गया। जेवल के साथ भी वही हुआ था, वो लास्ट तक रुका था, उसने कोई लीड नहीं ली थी, और डेफिनेटली उसे यूनिफॉर्म
जो चाहिए उसको उसने एनडीए क्लियर किया, रिकमेंडेड हुआ और अगेन उसने रिटर्न निकाला, इस बार डेफिनेटली निकल जाएगा। जब तक खुद पे विश्वास रखोगे, साथ में रहोगे, आपको रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। दुबे सर, प्रीति मैम, सभी स्टाफ बैठे हैं और आज ऐसा दिन है, ऐसे लग रहा है कि इधर ऐसा सुनहरा, सुनने में, देखने में खुशनुमा माहौल बना हुआ है और ये आप लोग की करतूत है जो खुशनुमा माहौल बनाने में आप लोग की अहम भूमिका निभाती है, जो कि ओसीए हम लोग क्या है, आप लोग को पुशअप करने के लिए काम किसको करना पड़ता है? हम तो बल्ब लगाते हैं, जलाना किसका काम है? लाइट को। हम बल्ब लगा देंगे, लाइट जलेगी? हम यहाँ आप लोग को क्या कर रहे हैं? रास्ता दिखा रहे हैं। हम बोलते हैं कोई भी इधर टीचर, कोई भी फील्ड से हो, आप लोग को कुछ भी बताएगा, कुछ भी ना करने के लिए भी बताएगा, तो आपके फायदे के लिए बताएगा। जो कि हमने वो चीज देखा है, मैं आप लोग बच्चे की तरह हैं, हम अपने बेटे को देखा है, बेटी को देखा है कि ऐसा करने से उसको ऐसा घाटा हो गया, तो हम इसको कैसे बोलने के लिए दूसरे बच्चे को बोलेंगे नहीं। जो भी मैं बोलता हूँ, कोई भी टीचिंग स्टाफ का कोई भी स्टाफ बोल रहा है तो उसको ऐसे दो, ये मत बोलो उसको, थोड़ा ऐसा मत लेने का। 2 मिनट के बाद मैं जाऊंगा, बोले हाँ क्या हाल है, ठीक है। और ये बोर्ड पे कितने नाम लिखे हुए हैं, सबके मन में ऐसा लग रहा होगा कि हमारा नाम क्यों नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए मेरा बेटा 10 बार एसएसबी में फेल हुआ है, 10। इमेजिन कर सकते हो? मेरा मकसद था तुम आर्मी में जाओ, वो जाता था, लेकिन ये नहीं बोलता था कि पापा मेरे साथ चलो। मेरे लिए ये एक वर्ड भी नहीं बोला। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं एसएसबी क्या है, ये क्या है, सब जो जाना है स्कूल में एडमिशन लेना सब खुद किया। तो हम उससे मोटिवेशन हो गए कि अरे यार ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। मेरे लिए एक भी नहीं, हमने केवल पैसा दिया उसको बस। तो आप लोग अपने माँ बाप के लिए इतने दूर से कहाँ से भेजे हैं, तो कुछ करने के लिए भेजे हैं। अगर आप कुछ थोड़ा सा भी करोगे ना, तो माँ बाप ऐसे होंगे, चौड़ा हो जाएंगे गाँव में। लेकिन किसकी वजह से? आपकी वजह से। माँ बाप की दिन गुजर गई, आपका आने वाला है। माँ बाप ने नाम नहीं किया तो आप उनके नाम कर सकते हो, ठीक है। और अभी चल रहा है आर्मी नेवी सब पूरा, देखो कैसे तेज है, उसको देख के भी जोश आना चाहिए अपने इंडिया के लिए, कोई आप उठा के ना देखे। तो ये ओसीए वो फैक्ट्री है जो वहाँ से निकलती है वहाँ जाने के लिए। जिसको बॉर्डर पे जाना है, जिसको आगे देखना है, जिस फील्ड में जाना है, ओसीए ज्वाइन करो और यहाँ से जो लेना है, जितना हमसे लेना है पूरा ले लो। ऐसा सोचो टीचर के पास कुछ बचे ही ना मेरे, जितना मैं ले लूँ। वो कैसे लेगा? आपका जज्बा। सोने मत दो किसी को। जब भी बैठते हैं, अभी आप रेस्ट करने के टाइम होता है, जाके रेस्ट कर लेते हो, क्योंकि क्लास के टाइम में तो सबका बराबर है। जब रेस्ट करोगे, रेस्ट आराम करोगे, तो आपकी उन्नति होगी। कुछ ऐसा चीज है, मैं मेरे साथ बात करोगे, मैं भी ऐसा चीज बता दूंगा कि बाद में वो चीज आएगा, सर ने बताने से ही बात होगा। कोई भी फील्ड में ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं कि जहाँ से नहीं पूछी जाती है। कोई ऐसा फील्ड है कहीं भी, तो ऐसा जोश करो, कभी ऐसा सोचो मत मैं यहाँ से खाली जाना है, कुछ लेके जाना है, हाथ में, दोनों हाथ में लेके जाना है। और यहाँ उसी तरह से तैयारी करो और वही बैठो और बोर्ड पे अपना नाम लिखाओ। बोर्ड से भी ऊंचा करो, ऐसा काम करें कि हम पार्टी इतनी जोर से दें कि सारा सिटी में जाना पड़े, ऐसा काम करो। और मैं क्या बोलूँ, सब अपने सब यहाँ अपना, मैं आपको क्लास में नहीं आता हूँ, लेकिन कहीं भी अगर किसी को मन थोड़ा सा वैसा लगता है, मेरे साथ आकर कभी भी बात कर सकता है, 5 मिनट बैठ सकता है और मैं बात करूँगा तो आपको कुछ भी कुछ न तसल्ली होगी। और मैं ध्यान देता हूँ इसके लिए। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद सर।
जय हिंद. जय सर. मी मराठीत बोलतो. सगळ्यांना तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिले सरांनी वगैरे बऱ्यापैकी. NDA कसं आहे की NDA मी इथं आल्यापासून मला इतकं आनंद वाटतोय. बऱ्याच अकॅडमी मी बघितल्या, पण OC अशी अकॅडमी आहे की डिफेन्स फॅक्टरी, दरवर्षी डिफेन्स फॅक्टरी. मी एक अभिमानानं सांगतो की आतापर्यंत आपल्या अकॅडमीतले 976 विद्यार्थी ऑफिसर लेवलमध्ये आर्मी नेव्ही एअरफोर्स जॉईन झाले. तर मला सांगायला इतका अभिमान वाटतो की ऑफिसर्स करिअर अकॅडमीमध्ये सगळा स्टाफ, इथलं मॅनेजमेंट, इथलं डायरेक्टर सर इथंच राहतात. हे जो आपल्याला जो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मिळतो आहे हे कुठल्याही अकॅडमीमध्ये मिळत नाही. आणि कसं आहे, आपण ज्या उद्देशानं आपल्याला वडिलांनी इथं पाठवलं की एक काहीतरी आपल्याला बनायचं आहे, ऑफिसर बनायचं आहे, ते टार्गेट अचीव करायचं आहे. आणि टार्गेट म्हणजे असं काय फार मोठी गोष्ट नाही आहे. डिफेन्स म्हणजे IPSला बघा, परवा एक धनगराचा मुलगा IPS झाला. तो माळावर मेंढर राखत होता तरी तो IPS होतोय. आणि तुम्हाला NDA म्हणजे काय एवढं मोठं काय नाही आहे. NDA मध्ये एवढं मोठं टार्गेट वगैरे. ट्राय बट डोंट क्राय. माणसांनी आयुष्यात नेहमी प्रयत्न करत राहिले पाहिजे. म्हणतात ना, गिव्ह टू दी वर्ल्ड बेस्ट टू यू अँड बेस्ट विल बी कम बॅक. प्रत्येक ठिकाणी कुठेही गेला तरी आयुष्यामध्ये एफर्टही करावंच लागतं. थोड्यामध्ये गेलं, अर्ध्या मार्कामध्ये गेलं, 1 मार्कामध्ये गेलं, असे अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत. डिफेन्समध्ये आहेत, IPSमध्ये आहेत. 2 वेळा बसण्यापेक्षा आतापासूनच तुम्ही जोमानं अभ्यासाला लागा आणि 16.5 ते 19.5 वयोगटामध्ये ऑफिसर बना. असा चान्स कुठंच नाही आहे. कारण बाकीच्या ठिकाणी इंजिनिअरिंग डिग्री डिप्लोमा करून सुद्धा मुलांचं 70, 50, 60च्या रेंजमध्ये 10 वर्ष केलं तरी जॉब त्यांना सॅटिस्फॅक्शन मिळत नाही आहे. म्हणून थोडीशी तुम्ही मेहनत घ्या, प्रयत्न करा. एनी टाईम कुठलाही स्टाफ असू द्या, काही असू द्या, काही डाऊट, शंका वगैरे फ्री माइंडेड बोला आणि आयुष्यामध्ये तुम्ही सक्सेस व्हा, यशस्वी व्हा. ही माझी तुम्हाला मनोकामना आहे. उसी एक लैब बुक. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Now, what I would like to talk about is, of course, we have the best names here, and I congratulate our sirs and the team, and of course our students. The reason is best place where we can do ground. Okay, तो मेहनत कर सकते हैं. So दाना, पानी, पढ़ाई, ठीक है, फैकल्टी जो आपको मिला है ये बहुत बेस्ट है. यहाँ पे एक सर से लेकर दूसरे सर को एक से जो बेस्ट है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सर के पास खुद इतना नॉलेज है जो किसी के पास नहीं है. ट्रस्ट मी, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड. मेरे को इस एज में मुझे चांस मिला यहाँ पे आके आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए. सो आई एम फर्स्ट थैंकफुल टू सर एंड मैम to choose me to be one of those who is able to help you all for your future. And second, please इस समय को मत गवाइए. ये समय बहुत important है. आपके पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं, साथ में समय आप मत गवाइए. जिसके पास हाइट की कमी है, मैं हाइट में मार खाई हूँ आज, इसलिए NDA में नहीं हूँ. चाह बहुत था लेकिन ये सपोर्ट नहीं था. तो आपको ये सपोर्ट पेरेंट्स के तरफ से, स्टाफ के तरफ से, सर के तरफ से, हर तरफ से मिल रहा है. उसे यूटिलाइज कीजिए इन द बेस्ट पॉसिबल वे. और जैसे कि कृष्णा सर बताए हैं, 2 चीज आपको करना है कंपल्सरी टू इंश्योर योर नेम इज अप ऑन द बोर्ड. नॉट हियर, नॉट ओनली नाउ बट ऑल्सो इन द फ्यूचर, कि हम सबको आप पर फकर हो. Okay? And that is only possible when whatever is being taught, you go back and do it. मस्ती मजाक होते रहेगा लाइफ में, लेकिन ये समय एक बार हाथ से निकल गया वापस नहीं आएगा. ये एज हाथ से निकल गया वापस नहीं आएगा. So I emphasize, I request you all to make the best use of the resources, faculty
and the support that you're getting from everyone, from your parents to the support team that you have here and the faculty. That's all I would like to speak. Thank you very much. Jai Hind. गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज ये बोर्ड पे नाम पढ़कर बेहद खुशी हो रही है। इनमें से बहुत सारे बच्चे सामने से देखे हैं। सर ने जैसे जेबल का जिक्र किया, आयुष भोसले है, राहुल चौहान है, सबसे बढ़िया बच्चों में से है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बढ़िया बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो खूब मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जेबल का सिर्फ मैं एक एग्जाम देना चाहूँगा सर। वो बच्चों को कभी भी देखिए आप, सुबह देखिए, दोपहर में देखिए, शाम में देखिए, उसके हाथ में बुक रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ता दिखा देगा। देखिए दोस्तों, आपके माता पिता ने यहाँ पे जो आपको डाला है किसी मकसद से, किसी उद्देश्य से, सिर्फ उसको याद रखिएगा। जब भी आप सक्सेस होंगे तो ये याद रखिएगा कि उन माता पिता की गांव में, गलियों में, शहरों में एक अलग पहचान होगी। बस उस पहचान को जिंदा रखने के लिए मेहनत कीजिए। उसी का शेड्यूल है, मैं मानता हूँ, 2 साल से मैं देखा हूँ, जो भी बच्चा उसी का शेड्यूल फॉलो करता है वो 100% रिजल्ट देता है। 100% मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूँ। मेहनत कीजिएगा, जो भी डाउट्स हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ पूछना होगा, समय पे आके फैकल्टी से बात कीजिएगा। ओसीए जैसी फैकल्टी मैंने देखी नहीं। देखिए एडवांस मैथ कृष्णा सर जैसे पढ़ाते हैं, गैप डायरेक्टर सर, दुबे सर जैसे पढ़ाते हैं, शायद ही कोई पढ़ाता हो। इस चीज़ का फायदा उठाइए, बेहतर शिक्षा हम देने का प्रयास करते हैं। उस चीज़ को आप मेहनत कीजिएगा और रिजल्ट दीजिएगा। सारे बच्चों को मैं शुभकामनाएं दूंगा आने वाले रिजल्ट के लिए, और इन बच्चों को भी बहुत सारे प्यार। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद सर। आपको पता है कमांडर आवाज छोटी देता है, बाकी सबकी आवाज तेज रहनी चाहिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सो बेसिकली सबने सब चीज़ बता दिया है, कुछ ऐसा नया नहीं है कि जो मैं बताऊँ, और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे पहले से एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ से बता दूँ। सो जो भी है सारे डिग्निटीज ने बता दिया है यहाँ पे कि ये हुआ है और सबको क्लियर हो गया है। सिर्फ मेरा एक ही वर्ड है, अगर आप 4 महीने की मेहनत करोगे, 4 महीने की मेहनत, 4 महीने नहीं सोओगे, आने वाले 40 साल उसको याद करोगे कि वो मैं 40 साल 4 महीने नहीं सोया तो वो 40 साल आपको याद दिलाएगा कि वो 4 महीने नहीं सोया। सिर्फ 4 महीने आप जाओगे, आपको वो डेफिनेटली कहीं अलग दिखेगा। अगर 4 महीने सही से नहीं खाओगे, डेफिनेटली वो कहीं अलग बताएगा कि मैं वो नहीं खाया था, इसकी वजह से आज ये हो। 4 महीने सही से नहीं पहनोगे तो डेफिनेटली जब वर्दी पहनोगे ना तो बताओ कि 4 महीने मैंने इस कपड़े में गुजारा हो, तब जाके आज ये पहनो। सिर्फ यही इतना वर्ड है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बोलना चाहेगा ऑन दिस गुड ओकेजन, जो बोल सकता है? पद्मेश चौहान। चलिए अपने आप से, हाँ पहले तो समझ गया मैं। पद्मेश कृष्णा पुराने बच्चों में रहेंगे, तो कौन बोल सकता? चलिए जाओ, कमान तुम्हारा वो रिकॉर्ड करूँगा, आ जाओ। फिर मैं बोलता हूँ, इतना टाइम है, सचिन काम आएगा। चल पद्मेश।